Hey everybody, I hope ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੀ IELTS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। My name is Ekam Singh Pannu and this is the English Family YouTube channel। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ which is often considered very easy but ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ which will be dealing in this playlist। this is the first video in that thing and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੋ ਟਿਪਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਟਿਪਸ ਵਿਚ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਸਟ ਫੋਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ठीक है, सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद इट। आप एक बार इन्हें शुरू करते हैं। लेट मी हैव द मार्कर, हेज द मार्कर। लिस्टिंग मॉड्यूल शुरू करना प्लीज़ थोड़ा ध्यान देखो। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਪੈਸੇजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 questions per section that will be around your 40 marks 40 questions। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ 30 ਮਿੰਟਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। with each section getting increasingly more difficult। so एक चीज ये भी ध्यान रखनी है। कहने का मोटिव की है कि there are 4 sections, हर सेक्शन ਵਿੱਚ 10 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ एंड 4 शुरू होंदा एंड लास्ट जो सेक्शन होंदा दैट इज ऑफन कंसिडर्ड एज वेरी डिफिकल्ट। सो वो चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। अच्छा, 10 मिनट एक्स्ट्रा दिते जाते हैं टू ट्रांसफर द आंसर्स ऑन योर आंसर शीट। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਨਸਰਸ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ऑल राइट, सो ये एक बेसिक ड्रिल है। सो प्लीज इन्हों थोड़ा एक बार चाहे दोबारा देख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैगी है। इस तो बाद लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स which I consider is very important। so इन्हों थोड़ा ध्यान रखियो। सब तो इंपॉर्टेंट टिप जिहड़ी हैगी वो हैगी कि familiarize yourself with wide range of accents। ਹੁਣ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਕਸੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर योर IELTS ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਕਸੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਕਸੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂ ਮਸਟ ਫॉलो BBC। ठीक है, BBC चैनल फॉलो करो, उधर चाहे यूट्यूब पे चैनल सबसक्राइब कर लो, चाहे अपने ऐप डाउनलोड कर लो मोबाइल दे विच, पर उत्थे तुहानू एग्जैक्ट जो एक एक्सेंट चलदा है ब्रिटिश एक्सेंट या ओदी जो एक वेरिएशन हैगी है, चाहे स्कॉटिश ब्रिटिश है चाहे जेडे भी ओदे एक्सेंट ने, वो सारे दे सारे BBC उत्ते जिन्ने भी प्रोग्राम्स देखोगे ओदे नाल तुसीं फैमिलराइज हो जाओगे। सो ओनली वन चैनल विच यू मस्ट फॉलो दैट इज योर BBC। ठीक है, BBC फॉलो करो, BBC चैनल इंग्लिश। ठीक है, उन्होंने फॉलो करो, उन्होंने प्रोग्राम्स को बार बार देखो बिकॉज उन्होंने एक एक तुहानू फैमिलराइज करनगे। ठीक है जी, देखो जी ध्यान दे नाल समझो, ध्यान दे। लिसनिंग टेस्ट विल फीचर अ वाइड रेंज ऑफ एक्सेंट्स दैट रिफ्लेक्ट इंटरनेशनल नेचर ऑफ इंग्लिश। जो तुहानू मैं गल कही हुई है कि ऑस्ट्रेलियंस किदा बोलते हैं, अमेरिकनस किदा बोलते हैं, सो तुहानू इस चीज़ रखनी है। सो देयरफॉर यू मस्ट गेट used to listening to accents from wide range of English speaking countries। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ BBC
एंड अगर BBC यू फील थोड़ा जिहा तुहानूं औखा लग रहा, यू कैन फॉलो अल जजीरा, दैट इज ऑल्सो न्यूज़ चैनल। सो इदां दी चीज़ हो। या अगली चीज़ एक तुहानूं होर सौखा तरीका दसदा, वो ये है कि लेट्स से इफ यू आर इनटू रीडिंग बुक्स, यूट्यूब ते ऑडियो बुक्स की ऑडियो ला लिया करो एंड स्टार्ट रीडिंग द पेजेस ऑफ द बुक। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ। दैट प्रोनाउंसिएशन यू कैन लर्न फ्रॉम दैट ऑडियो बुक ਜਿਹੜੇ ਕਿ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਈਲ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਆਡੀਓ ਇਨ योर ईयर्स एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੈਮਿਲਰਾਈਜ਼ योरसेल्फ विद वाइड रेंज ऑफ एक्सेंट्स। सो पहली टिप ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। अनदर टिप जो कि इंपॉर्टेंट है कि वो हैगी है कि नैवर लूज योर कंसनट्रेशन। हुण ये चीज़ क्यों कहा जाता है, कहने का मोटिव की है, जो राइटिंग करता बंदे को 1-2 मिनट साह लैन का टाइम होंदा, रीडिंग सॉल्व करता तो भी उसके को किते ना किते एक बफर होंदा कि चल ठीक है 2 मिनट साह लैके दोबारा फिर शुरू करता, ही कैन रेजुविनेट। बट लिसनिंग दे विच इदां नहीं है। एक बार ऑडियो शुरू हुई, ठीक है, अगर तुहाडा थोड़ा जिहा भी ध्यान इधर होया तो तुसी ਉਹ एक ट्रैक ਨੂੰ मिस कर दोगे एंड ਤੁਹਾਡੇ आंसर्स मिस हो जाते हैं। सो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ਜਦੋਂ ऑडियो शुरू होगी बच्चा ਤੁਹਾਡਾ फोकस सिर्फ ਉਹਦੇ कंसनट्रेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, नॉट हियर एंड देयर। अच्छा, एक चीज़ होर बच्चे ਨੂੰ फील ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल एंड नाउ यू आर अबाउट टू हियर द सेकंड पार्ट ऑफ योर लिसनिंग मॉड्यूल। उदों ना अपनी कंसनट्रेशन बहुत कंट्रोल करके रखनी पैंदी है। हुंदा की है कि उदों पूरे तुहाडे ना मन दे विच बड़े अजीब जे ख्याल आउंदे कि अज सवेरे मैं की खादा सीगा, शामी की खादा सीगा या की खाना आया। ठीक है, सो वो एक मोटिव है जिथे आके कंसनट्रेशन तुहाडी फ्लक्चुएट करती है। सो उस चीज़ नूं बच्चा थोड़ा ध्यान रखियो कि कभी भी जदों ट्रैक चल रहा ऑडियो का उदों तुहाडी कंसनट्रेशन लूज नहीं होनी चाहिए, या जदों ट्रैक दे विच पॉज आया होया एक सैक्शन तो बाद दूजा सैक्शन शुरू होना आ उदों तुहाडी कंसनट्रेशन हिलनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट विल दैन रूइन योर लिसनिंग पेपर। ठीक है, हुण देखो ध्यान दे नाल, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टे फोकस्ड। बिल्कुल सही गल है भाई, डिफिकल्ट है जी, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है जी, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज कि 7 बैंड लैने हैं जे ते तुहानूं फोकस्ड रहना पैना। एक चीज़ हमेशा याद रखियो बच्चा, सब तो स्कोरिंग जे कोई मॉड्यूल हैगा दैट इज द लिसनिंग। लिसनिंग बहुत स्कोरिंग है जस्ट बिकॉज तुसी सुन के आंसर परसीव करके लिखना होंदा। सो इसे करके कहना अपना कंसनट्रेशन वाला जो एटीट्यूड है उन्होंने हमेशा ऑन रखो व्हेन यू आर डूइंग योर लिसनिंग। एंड दूजी गल एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, अपने स्पैलिंग्स नूं थोड़ा जिहा होर कंट्रोल करो। किते ना किते बच्चा करदा की आ उहदा आंसर ठीक हुंदा, पर जो SES की गलती करदा तो उन्होंने समझ नहीं आता कि हुण मैं करा कि मैं जावां किधर नूं, जस्ट बिकॉज कि आंसर गलत हो जाता। सो कहने का मोटिव की है कि कंसनट्रेशन बना के रखो। अगर लेट्स से तुहाडे सामने कोई वर्ड आउंदा आ एंड तुहानूं उहदे वर्ड दा मीनिंग नहीं पता लगदा तो उन्होंने एक बार चैक कर लो, एंड अगर चैक कर लिया तो तुहानूं दोबारा वो भुलना नहीं चाहिए। कहने का मोटिव की है बच्चा, किते भी कोई भी अगर तुसीं कंटेंट पढ़ते हो, चाहे इत्थे फॉर एग्जांपल लिखे ब्राइट लिखा होया, सो ब्राइट दे स्पैलिंग, प्लेस दे स्पैलिंग, ठीक है, सो ये सारे जिहड़े स्पैलिंग्स ने इट कैन हैल्प यू आउट। बस गल की है कि जिथे भी बैठे हो थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, तुहानूं बहुत वर्ड्स इदां दे मिल जाने हैं। ठीक है, अच्छा, इस तो बाद थर्ड देखो, फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हुंदा की है वो ना ईजी मार्क्स लूज करते हैं जस्ट बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन जिहड़ी जो एक उन्होंने पता लगती है, आंसर लभ जाता, उन्होंने लिखना नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन च लिखा होंदा राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 1 वर्ड। हुण उन्होंने यही समझ नहीं आता कि 1 वर्ड की है, 2 वर्ड की है। ठीक है, इस बारे में एक वक्री डिटेल वीडियो बना दूंगा विच कैन हेल्प यू आउट इन योर राइटिंग एंड रीडिंग एंड इवन लिसनिंग। सो थोड़ा ध्यान रखियो, बट एक चीज़ हमेशा याद रखो कि फॉर एग्जांपल थोड़ा इत्थे एलैबोरेट कर देना, अगर मैं कहा लिविंग मतलब जीना, दैट इज 1 वर्ड। अगर मैं कहा लिविंग रूम, हुण दैट इज ऑल्सो 1 वर्ड जस्ट बिकॉज एक कमरे दी एक किस्म होंदी है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ रूम। लिविंग मतलब जीना,
कमरा मतलब रूम अगर मैं डिफरेंट कहा दैट इज ऑल्सो वन वर्ड, बट अगर मैं लिविंग रूम ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ दैट इज ऑल्सो वन वर्ड, बिकॉज ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सेम सेम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहा हिमाचल प्रदेश, ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਦੋ ਵਰਡ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ दैट इज ऑल्सो वन वर्ड। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वर्ड एंड टू वर्ड। दिस स्पेशली अप्लाइज, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, व्हेन इट कम्स टू वर्ड लिमिट, जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ठीक है, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है जी, देन यू कैन नॉट राइट मोर देन दिस। सो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो कि अगर लेट्स से तो नॉट मोर देन 3 वर्ड्स लिखा एंड इफ यू आर राइटिंग इट सो थोड़ा आंसर गलत हो जाएगा। सो इनू थोड़ा इंपॉर्टेंट समझो, ठीक है, इनू चाहे थरली डिटेल च पढ़ लो, नहीं तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा आई विल बी शेयरिंग लिंक ऑफ दैट, उन्होंने एक बारी समझ लियो। ओके, अच्छा, प्रैक्टिस लिसनिंग टू थिंग्स ओनली वंस। अच्छा, बच्चे ना ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 14 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ 25 ਆ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ 35 ਆ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਬਿਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 9 ਆਉਂਦੇ ਆ, 8 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ, ਬੇਟਾ ਬੈਂਡ ਤੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਟ ਅਸਲੀ ਡਰਿਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। lot of teachers, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, allow their students to listen to a recording 3 or 4 times, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ 3-4 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਇਲਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਅਸਲੀ ਜੋ ਡਰਿਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਵੀ ਲੈ, ਬੈਂਡ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। असली बैंड वो ने जेडे ਤੁਹਾਡੇ 15,500 पट के ਤੁਹਾਡਾ जो रिजल्ट आएगा, दैट इज योर रियल बैंड। सो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखियो। अच्छा, सो हाउएवर जो चीज़ रिकमेंडेड है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड बाय मी, इट इज रिकमेंडेड बाय द कैम्ब्रिज एंड द ब्रिटिश काउंसिल, दैट इज कि इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस एग्जाम अंडर एग्जाम कंडीशंस। दैट मीन्स सिर्फ एक बारी करनी है, ओनली वन टाइम, ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਪਸ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ आई विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो लिसनिंग ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, प्लीज़ प्रिपेयर दोज एंड इनू साइड बाय साइड आप लिसनिंग भी शुरू कर लिया, सो दैट तुहाडी एक तरह जो आप टारगेट लिया होया टू क्रैक आइल्स एग्जाम एंड गेट सेकंड बैंड्स वो आप ईजिली आप कर सकीए। सो थैंक यू सो मच बच्चा, स्प्रैड इट लाइक फायर एंड इनू जिन्ना कर सकते वध तो वध करो, सो दैट बाकी बच्चों का भी भला होवे एंड उन्होंने भी अवेयरनेस होवे कि आइल्स दे पेपर कोई औखी चीज़ नहीं हैगी, बट हाँ इनू बना औखा दिता गया सो दैट तुहाडे जेबां चों पैसे कढ़ा दिते जाण, ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, अपने लैवल से प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर प्रिपेयर करना है तो वधिया ढंग के नाल करो एंड 1.5-2 महीने में पेपर क्रैक करो, ये नहीं कि 6-6 7-7 8-8 महीने यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।